students, in this video uh, we will discuss reproduction, okay, and types of reproduction. First of all, what is the definition of reproduction? A biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself is called reproduction. Then, types of reproduction. So, there are two types, asexual and sexual reproduction. Here we will see difference between asexual reproduction and sexual reproduction. So first, asexual reproडक्शन इज यूनिपेरेंटल. यूनिपेरेंटल मीन्स इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. देन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल मीन्स इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. देन सेकेंड पॉइंट, अकर्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ sex organs. Okay, and then here in sexual reproduction requires formation of sex organs. Then next, no fusion of gametes, and here in sexual reproduction fusion of gametes. Then zygote are not formed, no fusion of gametes, so zygotes are not formed, and here fusion of gametes, so zygotes are formed. Then next, offspring are same as parent. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग है वो सेम पेरेंट जैसी दिखती है. ठीक है, क्लोन. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन, इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था. ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट, तो थोड़ी सी ऑफस्प्रिंग्स जो होती है वो डिफरेंट होती है थोड़ी सी पेरेंट्स से. Then it is a very quick method of multiplication, and here in sexual reproduction it is a very slow method of multiplication. Then next we will discuss first type, asexual reproduction. So what is the definition of asexual reproduction? So production of offspring by a single parent without the formation and fusion of gametes is called asexual reproduction. It is common among single-celled organisms. Okay. In this method, certain body cells of the parent organism undergo repeated mitotic division. Mitotic division means equational division. ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. इक्वेशनल डिवीज़न, सेल डिवीज़न टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड. ओके, सो सी हियर, sexual reproduction takes place by 6 different methods, and these are, which are 6 different methods? So see here, fission, and in fission binary fission and multiple fission. And examples of binary fission are amoeba, paramecium, euglena, etc. Then in multiple fission, plasmodium. Then second type, budding. Second method is budding. Okay, examples are hydra and yeast. Then third method, fragmentation. Example, spirogyra. Then fourth, regeneration. Example, planaria. Then spore formation. Example, rhizopus. And then sixth one is vegetative propagation. And in vegetative propagation we will see two methods, natural vegetative propagation and then artificial vegetative propagation. So we will discuss all these methods one by one. So first of all, see fission. Fission means what? Fission means splitting. Okay, one parent organism splits or divides to form
टू न्यू ऑर्गेनिज्म। एक जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो डिवाइड हो जाता है और उसमें से दो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फीजन। इन फीजन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बाइनरी फीजन। Here, see in this diagram, this is the diagram of amoeba. First we will see first example amoeba. ठीक है कि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में फुल्ली ग्रोन अमीबा है, ये पेरेंट सेल है, दिस इज न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। ओके, देन बी न्यूक्लियस लेंथन, न्यूक्लियस इसमें साइज उसकी बढ़ रही है। देन सी डायग्राम नंबर सी, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, डायग्राम नंबर डी, एंड देन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। क्या हुआ फिर बाद में, ये स्प्लिट्स होके दो डॉटर सेल्स बन गए। अब देखो ये जो बाइनरी फिजन है वो कैसे होता है। प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरिएबल। कोई भी प्लेन, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, एनी प्लेन। ओके, तो सो प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरिएबल बट इज ऑलवेज एट राइट एंगल। कैसे होता है, ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इलोंगेटेड डिवाइडिंग न्यूक्लियस। फर्स्ट द अमीबा सेल हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, ये ठीक है, उसका फुल्ली ग्रोथ हो जाना चाहिए। देन फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथन, क्या होगा, वो इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, एंड देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, one part around each nucleus, one part around each nucleus. Okay, in this way one parent amoeba divides to form two smaller amoeba called daughter amoeba. Okay, ये दोनों। then next see here binary fission in leishmania. ओके, अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लेशमेनिया, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ फ्लैजिलम, ये क्या है, फ्लैजिलम। ओके, सो लेशमेनिया इज़ यूनिसेलुलर एनिमल, क्या है, यूनिसेलुलर। अमीबा ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल, वो भी अमीबा भी क्या है, वो भी यूनिसेलुलर है, और लेशमेनिया इज यूनिसेलुलर एनिमल। इट इज़ अ पैरासाइट विच कॉजेज द डिजीज नोन एज काला अज़ार। कौन सा डिजीज होता है, काला अज़ार। ओके, और ब्लैक फीवर, सी हियर काला अज़ार और ब्लैक फीवर। व्हाट इज काला अज़ार, काला अज़ार इज ऑल्सो नोन एज लेशमेनियसिस, उसको क्या बोलते हैं, लेशमेनियसिस। लेशमेनिया हैव अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट, सी हियर, एट वन end of the cell, vipe like structure, one end of the cell called flagellum, this is called flagellum. Okay, leishmania reproduces by the process of binary fission, and in leishmania the splitting of parent cell during fission or cell division takes place in a definite plane longitudinally। कैसा होता है, यहाँ पे प्लेन लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड होता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैजिलम एट इट्स एंड। ओके, तो लेशमेनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। देन मल्टीपल फिजन, ओके, सी हियर, नेक्स्ट मल्टीपल फिजन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। सो इन मल्टीपल फिजन वन पेरेंट सेल अंडरगोज स्प्लिटिंग टू फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स, यू कैन सी हियर मैनी डॉटर cells
ओके, यहाँ पे क्या है कि ये एक पेरेंट है, उसमें से बहुत सारे न्यूक्लियस देखो डिवाइड हुए। ईच न्यूक्लियस इज गेटिंग इट्स ओन साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एक न्यूक्लियस है उसके पास क्या होता है, उसका ओन साइटोप्लाज्म होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो ये आउटर लेयर है वो सिस्ट है। देन अब क्या हो जाएगा कि ये पेरेंट सेल है, व्हेन पेरेंट सेल रप्चर, वो ब्रेक हो जाएगा। रप्चर्स दिस मल्टीपल सेल्स और डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड, इसमें से डॉटर सेल्स बाहर आ जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट बर्डिंग, नेक्स्ट टाइप बर्डिंग। सो एग्जाम्पल हाइड्रा। ओके, देखो हाइड्रा में क्या होता है, दिस इज टेंटिकल्स एंड पेरेंट हाइड्रा, दिस इज पेरेंट हाइड्रा। यहाँ पे बर्ड फॉर्म होगा, फिर बर्ड ग्रो होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से वो डिटैच हो जाएगा और न्यू हाइड्रा जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल। हाइड्रा क्या है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, and in budding a small part of the body of the parent organism grow out as a bud, which then detach and becomes a new organism, और फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। a bud develops as an outgrowth due to due to repeated cell division. Bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. ओके, तो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल यीस्ट। ओके, अब ये यीस्ट है, उसमें कैसे होता है, यीस्ट जो है उसको हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है होती है बेकरी में, और उसमें ये यीस्ट यूज़ होती है। सो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखो दिस इज़ पेरेंट यीस्ट सेल, देन बर्ड फॉर्म हुआ, उस पर क्या हो रहा है, ये बर्ड फॉर्म हुआ और फिर ये बर्ड यहाँ से डिटैच हो जाएगा, न्यू यीस्ट सेल बन जाएगा। ओके, सो यीस्ट इज़ अ टाइनी यूनिसेल्युलर नॉन ग्रीन प्लांट, टाइनी यूनिसेल्युलर नॉन ग्रीन प्लांट विच इज़ अ फंगस। यीस्ट reproduces by budding. Okay, then next fragmentation. Okay, fragmentation फ्रेगमेंट हो जाना, ओके, ब्रेकअप हो जाना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। सो हियर वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन इज स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन फिलामेंटस alga, ये क्या है, ग्रीन फिलामेंटस algae प्लांट विच फाउंड इन ponds, lakes and show moving streams. Okay, here this is the diagram of Spirogyra. This is mature Spirogyra, and by the process of fragmentation, देखो इसके 1, 2 और 3 पार्ट में वो ब्रेक हो गया, और फिर उसमें से 3 स्पाइरोगायरा जो है वो फॉर्म होते हैं, 3 ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जितने भी उसके वो ब्रेक डाउन हो के जितने भी पार्ट्स उसके बनते हैं 1, 2, 3, तो उतने न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। ठीक है, सो स्पाइरोगायरा इज अ मल्टी सेल्यूलर प्लांट एंड बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस, उसकी बॉडी पीसेस में ब्रेक हो जाती है। एंड ईच फ्रेगमेंट, सारे जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो सारे फ्रेगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इनटू अ एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ओके, देन नेक्स्ट रीजनरेशन।
and examples are planaria and hydra. This is the diagram of planaria. Okay, so cut into 3 pieces. ये जो प्लेनेरिया है वो 3 पीसेस में कट हुआ, 1 2 3 एंड इस और फिर उसका क्या हो गया, वो 3 पार्ट्स है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म, उसमें से न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए। ठीक है, अब देखो फ्रेगमेंटेशन में भी ये सेम हुआ था और ये प्रोसेस है रीजनरेशन, ये है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि देखो रीजनरेशन जो है उसमें ट्रू रीजनरेशन और फॉल्स रीजनरेशन होता है। ठीक है, ये समझना फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये जो ट्रू रीजनरेशन है उसका एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा, और जो फॉल्स रीजनरेशन है उसका एग्जांपल है लिजार्ड, स्टारफिश। ओके, क्या है, लिजार्ड एंड स्टारफिश। तो देखो ये जो ट्रू रीजनरेशन है उसमें पूरी बॉडी है उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं और फिर उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। बट जो फॉल्स रीजनरेशन है उसमें क्या होता है कि सपोज़ लिजार्ड है, उसकी टेल कट हो गई तो जो टेल है वो रीजनरेट होगी, फिर से वो ग्रो होती है। स्टारफिश में भी ऐसा ही होता है, जो भी उसका पार्ट कट हो जाता है वो रीजनरेट होता है। पूरा ऑर्गेनिज्म कट हो के रीजनरेट नहीं हो सकता। तो ये दोनों टाइप्स है रीजनरेशन के। ठीक है, लेकिन अभी सिलेबस में सिर्फ यही है प्लेनेरिया, तो आपको यही करना है। ठीक है, देखो, ओके, दिस इज रीजनरेशन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स, the process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration. And planaria is a flatworm which is found in freshwater ponds and slow moving streams. The simple animals like hydra and planaria show regeneration. This means that whole new organisms can be reproduced from their cut body part. क्या मीनिंग होता है उसका, उसका जो कट बॉडी पार्ट है उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। In other words, if hydra and planaria somehow get cut into number of pieces, then each piece can grow into complete organism. कि उसका जो भी, ये सपोज नंबर 1 है, ठीक है, तो नंबर 1 है उसमें कौन से पार्ट नहीं है, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो यहाँ पे नंबर 2 एंड नंबर 3 पार्ट ग्रो होके ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। देन सेकेंड पार्ट, तो इसमें सेकेंड पार्ट, ये इसमें सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट और जो थर्ड नंबर है वो नहीं है, तो फर्स्ट और 3 यहाँ पे ग्रो हुए। ठीक है, तो रीजनरेशन की प्रोसेस ऐसी होती है कि जो भी बॉडी पार्ट उसके नहीं होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। Okay, then the regeneration of an organism from its cut body part occurs by the process of growth and development. ये जो बाकी के जो पार्ट ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं कि सेल्स जो है वो ग्रो होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल राइजोपस। ओके, तो देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है राइजोपस का। स्पोरेंजियम, स्पोर, ब्रस्ट, ये स्पोर जो है वो ब्रस्ट हो गया, स्पोरेंजियम है वो ब्रस्ट होके फिर उसमें से स्पोर बाहर आ गए। स्पोर्स ब्रिंग डिस्पर्स इनटू एयर। ठीक है, अब ये जो राइजोपस है वो कैसा होता है कि आप ब्रेड या किसी के भी उस पे फंगस वाइट
आप जैसे कॉटन हो ना, ऐसी वाइट 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 फंगस हो जाती है, तो उसको राइजोपस बोलते हैं, वो फंगस है, ठीक है। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. When the spores case of the plant burst, then spores spread into एयर। ये जो स्पोर्स है वो एयर में होते हैं, ठीक है। व्हेन द एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड, किसी फूड पे वो गिरते हैं या फिर सॉइल पे, एंड उसको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशंस, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और फिर क्या बन जाता है, उसमें से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है।